آپ سب کو میری طرف سے یہ عالی مدد۔ گارڈن طریقہ بورڈ کی طرف سے جو آج لیکچر ارینج کیا گیا ہے، اس میں آپ میں سے کئی لوگوں نے الگ الگ قسم کے سوالات وغیرہ بھیجے تھے، اور مجھے سوالات ملے اور ٹوٹل میں نے آج شام کو گنے 83 کوشچنس ہیں، اور مزید اور بھی کوشچنس اور پیپرز آنے والے ہیں۔ تو میں نے چیئرمین امین سر سے بات کی کہ یہ ایک سیشن کے اندر یہ سب چیز پوری نہیں ہو سکتی، اور جو بھی کوشچن وغیرہ ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ کمپلیٹ جواب ہوں میرے، کیونکہ میں دعوے کے ساتھ اتنا ضرور کہوں گا کہ میں کوئی اتھارٹی نہیں، یہ جسٹ ایک ریپلائی ہے، آپ کو اپیل کرتا ہے قرآن حدیث فرمان گنان کی روشنی میں یا آرگیومنٹ کی حیثیت سے آپ ایک پالیسی ایڈاپٹ کرو۔ نمبر 2، ہمیں اپنی کمیونٹی کے اندر اور باہر کون سی پالیسی ایڈاپٹ کرنی چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، مذہب کا کون سا حصہ ہمیں باہر بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، یا جو کوشچنس ہیں یہ ایسے انٹرسٹنگ کوشچن ہیں اور عجیب و غریب بھی کہ اس کا جواب، کئی تو ایسے کوشچن ہیں کہ اس کا جواب سوچ رہا تھا کہ سب کے سامنے دینا چاہیے کہ نہیں۔ میں ہمیشہ جہاں پر بھی تھرو آؤٹ کراچی اور اب کنٹری میں جاتا ہوں، سندھ اور پنجاب میں نیشنل طریقہ بورڈ کی طرف سے تقریباً اسی قسم کے سوالات ہیں، اور آج بھی میں نے دوپہر کو یہ چیئرمین امین سر کو بتایا کہ تقریباً 22-23 کوشچنس ایسے ہیں جو تھرو آؤٹ پاکستان ہر جگہ پر چل رہے ہیں یہ کوشچن، اور یہ ان کو فیڈ کرنا چاہیے ٹیچرز اور ایلڈرز اسٹوڈنٹس وغیرہ کو، تاکہ جماعت کے اندر ایک قسم کی مضبوطی آئے۔ میں نے ہمیشہ اسی ٹاپک سے بگننگ کی ہے، اور خود بخود آپ کے سامنے آپ کے کوشچن حل ہوتے جائیں گے، اور آج کے اس لیکچر کا جو سیشن ہے اس سے میں بگن کرتا ہوں لفظ نور سے۔ نور کیا ہے؟ یہ لفظ جو ہے قرآن میں عجیب بات ہے کہ 49 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ نور کی معنی ہے طاقت، پاور، اتھارٹی یا روشنی۔ یہ نور کا مطلب طاقت، پاور، اتھارٹی یا روشنی سے مراد کیا ہے؟ زیادہ تر ہم اس کو روشنی اس لیے لیتے ہیں کہ اندھیرا ڈارکنیس کا اپوزٹ ورڈ ہے۔ اندھکار اور ڈارکنیس، جہالت، جہاں پر عقل جیسی کوئی چیز کا کوئی دخل نہ ہو، اس کا اگینسٹ جو ورڈ آتا ہے روشنی۔ یہ ایک سپریم پاور ہے اور طاقت ہے، اور امام نے بھی فرمان میں بتایا کہ نور کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھو روشنی، اور قرآن میں خدا نے بتایا کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اور اسی نور نے تخلیق کی، پالنے والا ہے۔ لفظ اللہ ہے، تقریباً 2800 جگہ پر قرآن میں یہ لفظ اللہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ جو ہے خدا کی اسم ذات ہے۔ اسم ذات، آپ کہو کہ پراپر ناؤن کیا ہے؟ اللہ، اور اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کیسا ہے؟ رحم کرتا ہے، مہربان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ مختلف جو ہے اس کے ایٹریبیوٹس ہے، صفت بیان کرتے ہیں، اور صفت بیان کرنے والے نام کو ہم کہیں گے صفاتی نام۔ اس میں ذات ایک ہے، ایک نام ہے، اور صفت بیان کرنے والے کا اللہ یہ ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ
तो सिफाती नाम 99 है। नाम निरंजन के दो बातें, एक जाती एक बै सिफाती। खुदा निरंजन, निर यानी नहीं, अंजन यानी देखना, जो इनविजिबल हो, फिजिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनविजिबल हो, जो नजर ना आए। और इस खुदा ने एक नूर है, इसने इस कायनात की तख्लीक की। अब ये नबियों में और जमाने के इमाम में ये नूर है। और मैं हमेशा यही समझाता हूं कि इस नूर में दो कमाल है, दो क्वालिटी है, दो इसकी किस्में हैं, दो इसकी आंखें कहो, दो इसके रंग कहो, दो इसकी शक्लें कहो, दो इसके फॉर्म कहो, या दो इसकी अलामतें कहो। एक जमाली है और एक जलाली है। जमाल यानी ठंडा, नर्म, हल्का, जिसमें कोई वजन न हो। जलाल का मतलब भारी, तेज, सख्त, गरम। नूर कभी जमाली हालत में आता है, कभी जलाल। अगेन इसको मैं समझाऊं, हमारे कुरान और कुरान फरमान में इस तरीके से हमें इशारत मिलते हैं। जमाली हालत में अगर नूर है, ठंडा, जलाली हालत में है, गर्म। जमाल को रात से तशबीह दी, जलाल को दिन से तशबीह दी। रात ठंडी है, दिन गर्म है। जमाल को चांद से और जलाल को सूरज से तशबीह दी। चांद ठंडा है, सूरज गर्म है, भारी है। जमीन और आसमान से तशबीह दी। जमीन ठंडी है, आसमान गर्म है। माँ और बाप से तशबीह दी। माँ का मिजाज, टेम्परामेंट ठंडा है, बाप का टेम्परामेंट गर्म है। पीर और शाह से तशबीह दी। अगर नूर पीर में है तो वो अपनी जमाली हालत में है, अगर वही नूर इमाम में है, नर में है, तो वो अपने जलाल में है, यानी शाह। माँ और बाप। अब चूंकि 48वें इमाम के विल जो है उसके मुताबिक कि मैं अपने बेटे प्रिंस अली के बेटे करीम को पीर और इमाम की हैसियत मुकर्रर करता हूं, इसका मतलब शाह और पीर, नूर सुपुर्द करता हूं जो जमाली और जलाली हालत में है, यानी हमारे माँ और बाप की हालत में। और यही तालिका में है कि पैटर्नल, मैटरनल, लविंग, ब्लेसिंग, ये मखसूस अल्फाज हम देखते हैं इमाम के तालिके मुबारक में होते हैं। अगर इमाम अपनी जमाली हालत में है तो वो दुनिया में जिंदगी बसर करता है, इसकी औलाद होती है, शादी करता है, तलाक भी होती है, झगड़े फसाद होती है, जंग करता है, लड़ता है, व्यापार करता है, लेन देन करता है, आपसे पूछता है, मुझसे पूछता है, सलाह मशवरा लेता है, सब कुछ करता है। लेकिन अगर जब अपने जलाल में आता है तो फिर फर्क इतना है कि फिर उसके आगे कोई चीज हस्ती नहीं रखती। जुल्फिकार एक ताकत का नाम है। अगर वो मयान में है तो समझो कि नूर इस वक्त अपने जमाल में है। जुल्फिकार बाहर निकली, समझ लो कि नूर अपने जलाल में आया। जमाली हालत और जलाली हालत, पहले ऐसा था कि तकरीबन 90%, पीछे की हिस्ट्री आप देखते जाओ, 90% इमाम को हमने अपने जलाल में पाया। आज 90% इमाम को हम पा रहे हैं अपने जमाल में। इसलिए हम पास्ट की पीरियड से बहुत ज्यादा कंपेयर करने में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इस वक्त नूर किस फॉर्म में है, किस हालत में, इसमें मुरीद की क्या बेहतरी है, क्या हालत है। मौलाना इमाम सुल्तान शाह 1885 में जो फरमान किया था, मौलाना ने फरमाया कि हजरत अली
घर के अंदर जौ की रोटी खाते थे, बाहर निकलते थे तो पहाड़ों को चीर डालते थे और एक पलक में दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते थे। मौला अली जौ की रोटी खाते थे, गरीबी हालत में। बताया ये क्या है? मौला अली कहने का मतलब क्या? जमाली हालत में रहते थे, पहाड़ों को चीर डालते थे, बाहर निकलते थे। ये जलाली हालत है, वो इंसानी हालत है, और ये खुदाई हालत है। इस वक्त इंसानी हालत हम 90% देखते हैं और खुदाई 10% देखते हैं। पास्ट की हिस्ट्री में जाते हैं तो 10 और 90 आपस में रिवर्स हो रहे हैं, इसलिए पास्ट की हिस्ट्री को हम प्रेजेंट से कंपेयर करके क्वेश्चन पैदा करते हैं ज़हन में कि ऐसा क्यों, पहले तो ऐसा था। लेकिन जब जमाली हालत में हो और जलाली हालत में हो, जिस हालत में हो, हमारा ईमान जो है कि बस ये हकीकी मालिक है, हम इसको हमेशा जलाली हालत में देखते हैं। और अगर अपने जमाल में है तो समझो कि ये दुनिया बाने दुनियावी तौर से मौला ऐसा करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि पिछले साल हाज़िर इमाम 12 मार्च सेरीना होटल की इब्तिदा की थी इस्लामाबाद के अंदर, 12 मार्च सन 2002। तो वहाँ पर मैं 22 तारीख को था, यानी 10 दिन के बाद, जबकि हाज़िर इमाम का प्रोग्राम पूरा हो चुका था। 14-15 को मौला चले गए। एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। उस शख्स का नाम ऐसा लगे कि मैं इसको जानता हूं। बदरुद्दीन अली भाई सोमजी खानदान, बॉम्बे से ताल्लुक़ रखता है। मुझे किसी ने कहा कि आप इसके साथ बैठिए और कुछ बातें इनकी सुनिए। वो शख्स ने मुझे अपनी कहानी सुनाई और कहते कहते कहता है कि आज से 68 साल पहले की बात है कि 1934 में 12 मार्च मेरे वालिद हसनाबाद में इमाम सुल्तान शाह के हुजूर में एक मेहमानी पेश की थी। हम 3 भाइयों को वहाँ ले गए। उस वक्त मेहमानियाँ कम होती थी, मौला ज़्यादा बातें पूछते थे, डिस्कशन होती थी। तो मेरे वालिद ने मौला के पास हम तीनों भाइयों का इंट्रोडक्शन कराया। तुम्हारा नाम? नूर अली। क्या करते हो? बाप कहता था इसको स्काउटिंग में शौक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तुम्हारा नाम? हसन अली। किस चीज़ में शौक है? इसको फलानी चीज़ में शौक है। और वो कहता जब मेरा टर्न आया तो मेरे वालिद ने बताया खुदाउन ये सबसे बड़ा बेटा है, इसको सुबह को जॉगिंग करने का बहुत शौक है, जॉगिंग करने का बहुत शौक है। हो बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। दुआ सिस्ती। हम लोग 12, मैं मैट्रिक में था, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, मैंने धंधा यानी कारोबार शुरू किया। बाय द वे वो कहता है मुझे इंडोनेशिया जाना पड़ा और इंडोनेशिया के एक जंगल का नाम दिया। वहाँ एक आइलैंड है बोर्नियो के आइलैंड के अंदर एक जंगल है जहाँ बर्मा टिक की स्टाइल की एक लकड़ी होती है। वहाँ का एक ठेका मिला और इतना मैं मसरूफ़ हो गया, वो कहता है इतना मैं मसरूफ़ हो गया कि मुझे बाहर की दुनिया से मेरा कंटेक्ट बिल्कुल कट ऑफ था, मुझे पता कुछ नहीं चला। वहीं पर मैंने शादी की उस जंगल में, यानी उस जगह हम लोग कमाते थे, करते 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 ज़िंदगी का एक पूरा हिस्सा मैंने गुजार दिया। करीब रंगून से मुझे मेरा दोस्त खत के ज़रिए ज़माने की बातें बताता था। मैं इंडोनेशिया में था, डायमंड जुबली गोल्डन जुबली हो गई 1936 में, मैं वहाँ था। 1946 में मैं वहाँ था डायमंड जुबली में। हत्ता कि 57 के अंदर इमाम का जोमा चेंज हुआ, उस वक्त भी मैं वहाँ था। और फिर इतना अरसा गुजर गया, मेरा दिल टूट गया कि मैं बाहर जाऊँ। मेरे भी बच्चे हुए। 68 साल तक, जिस वक्त ये मुझे कह रहा था उस वक्त 84 के करीब इसकी उम्र थी।
68 साल 68 ईयर्स तक मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ टिम्बर का काम कर रहा था, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए। अब ये जो सेरीना होटल है वो कह रहा मुझे, इसकी जो लकड़ी है बाहर, ये मेरी कंपनी ने सप्लाई की थी। जब इसकी इब्तिदा हुई 12 मार्च को, तो हमारे कंपनी के 4 आदमी को इनविटेशन मिला, इसमें से मुझे भी इनविटेशन मिला। और मैं आज इस्लामाबाद में आया हूँ। मैंने मौला को देखा, एक जुम्मे के बाद दूसरे जुम्मे को देखा। 68 साल के बाद मेरी ज़िंदगी का साथ जो एक कहानी जो गुजरी, उसने मुझे बड़ी तफसील से बताया। वाकई उसकी मजबूरी थी। एनी हाउ 12 मार्च सन 2002, एग्जैक्ट 68 साल के बाद, प्रेसिडेंट, आर्मी के वगैरह, आर्मी के लोग वगैरह सब कुछ वहाँ मौजूद थे। सबसे इंट्रोडक्शन हो रहा था। जिस लाइन में खड़े थे, मैं आखिरी में खड़ा था। मौला ने एक आर्मी के नौजवान से पूछा, तुम वो तो शख्स नहीं कि जब मैं शादी के बाद याया खान के ज़माने में आया था तब तुम्हारे साथ मेरी रावलपिंडी में मुलाकात हुई थी? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मैं वही शख्स हूँ। देखो, मौला ने फरमाया, मेरी मेमोरी मुझे कितनी हेल्प कर रही है। दूसरे को कह रहा, तुमको शायद मैं जानता हूँ, तू ही बता, मेरी तो मेमोरी कमज़ोर है। अब सेकंड को ये कह रहे हैं, काम इतना है कि मेरी मेमोरी याददाश्त कमज़ोर है, तुम ही बताओ तेरे से कब मुलाकात हुई थी? तो उसने बताया कि मेरी आपसे फलानी जगह मुलाकात। एक से बात, दूसरे बात, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों ऐसी बातें पूछ रहे हैं और ऐसे जवाब ले रहे हैं? क्योंकि उस वक्त मौला अपने जमाल में थे, और जब मेरे तरफ आए तो मौला अपने जलाल में आ गए। कंधे पे हाथ रखा बदरुद्दीन के, मौला ने फरमाया, सबको थैंक यू, इसको खाना वदान का। कंधे पे हाथ रख के फरमाया, बदरुद्दीन, पूछा क्या नाम? बोला बदरुद्दीन। बदरुद्दीन कैसे हो, ठीक हो? अभी तक तुम जॉगिंग कर रहे हो ना? देखो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है खाना वदान, क्योंकि वो अपने जलाल में था। इसके 3-4 पहले एक शख्स से, कमांडरों से, आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसरों से मिला, उससे क्यों बातें की? क्योंकि वो अपने जमाल में था। अब आप कहो कि ऐसा करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, ये हमें डिसाइड करना है मन के अंदर। और भी मैं मिसाल दूंगा। दीवान गुलाम हुसैन मोहम्मद जिंदानी, जो मेरी अभी किताब के इंट्रोडक्शन में कहा ना, 101 इस्माइली हीरोज, इसके अंदर इसकी बायोग्राफी है। 3 दीवान हुए, इसमें से एक 2 अफ्रीका के, एक बॉम्बे का। इसमें से दीवान गुलाम हुसैन मोहम्मद जिंदानी 1967 में जब मौला मोम्बासा पहुंचे, उस वक्त इसका टाइटल काउंट का था। मौला ने इनकी वाइफ फातिमा बाई, काउंटेस फातिमा बाई के पास घर में एक 45 से 50 मिनट तक अलग में बात की। फातिमा बाई जमीन पर बैठी हुई है, मौला कुर्सी पर बैठे हैं, कांच का दरवाजा बंद है, घर के अफराद बाहर बैठे हैं, देख रहे हैं। फातिमा बाई ने एक एक मजहब की बातें पूछी उससे। काउंटेस फातिमा बाई ने मौला से एक एक बातें पूछी, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी इसने बाहर लिख आउट नहीं किया कि मैंने मौला से क्या पूछा। वो इसका पर्सनल मैटर था। लेकिन एक चीज इसने जो पूछी थी वो बाहर आकर सबको पता है। उसने मौला के पास अर्ज रखी, मौला, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में एक चीज का झगड़ा रहता है। मेरा हस्बैंड हमेशा कहता है कि पहले मैं मरूं, और मैं कहती हूं कि पहले खुदा मुझे उठाए। अब दोनों में एक डिबेट रहती है। अब आप आज हमारे घर पे आए हो तो आप इसका फैसला करो। कह सकता था ना मौला कि भाई नहीं नहीं, जिंदगी और मौत देना मेरे काम का नहीं, ये तो अल्लाह के हाथ में है। अगर ऐसा कह दे
तो समझ लो जमाली हालत में थे, लेकिन चूंकि उस वक्त अपने जलाल में थे मौला ने फरमाया ओके आई गिव यू 5 minutes, यू गो आउटसाइड द रूम एंड डिस्कस विथ योर हस्बैंड एंड लेट मी नो योर डिसीजन। जाओ 5 मिनट में देता हूं, बाहर अपने हस्बैंड से फाइनल फैसला कर लो डिस्कस करके, मुझे बताओ क्या फैसला किया। बाहर आई, अपने हस्बैंड से बातें करने लगी। अब मौला अंदर अकेले 5 मिनट बैठे हैं, बातें करते करते ये डिसाइड हुआ कि पहले हस्बैंड की डेथ हो भले, और बाद में फातिमा बाई की। फातिमा बाई और हस्बैंड दोनों अंदर दाखिल हुए मौला के हुक्म से, यानी काउंट गुलाम सिंह जिंदानी और काउंटेस फातिमा बाई जिंदानी अंदर आए। मौला ने फरमाया क्या फैसला किया। फातिमा बाई ने कहा मैं हार गई, पहले ये मरेगा फिर मैं। अब भी कह सकता था ना कि जिंदगी और मौत मेरे पास में, क्योंकि वो अपने जलाल में था। हाँ ये कह सके, अगर कह भी दे ऐसा तो समझ लो अपने जमाल में है वो। मौला ने फरमाया, हाथ उठा के फरमाया ओके आई ग्रांटेड, मैंने हाँ कह दिया, ग्रांट किया। ऐसा ही हुआ कि काउंटेस फातिमा बाई का काउंट जिंदानी का इंतकाल 26 मई 1983 में हुआ और इनकी वाइफ का इंतकाल 1992 में हुआ। ये पहले से ये जानते थे कि हमारे यानी जानते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा। मौला उसके घर में थे, मौला ने हाथ उठा के तस्दीक की, एग्री किया, ओके ग्रांटेड, आमीन खुदावन। 5 मिनट हुई या 10 मिनट हुई, मौला ने घड़ी के तरफ देखा, तो मौला ने घड़ी के तरफ देखने के बावजूद पूछ रहे काउंट को, काउंट क्या टाइम हुआ है। खुदावन तकरीबन 1 बज रहा है। फिर दोबारा घड़ी को देखा, 1 बज रहा है। आज कौन सा दिन है। फ्राइडे है, चलो करीबी कोई मस्जिद हो वहां पर जाके नमाज पढ़ के आए। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मौला अपने जमाल में आ गए। थोड़ी देर पहले अपने जलाल में था, जिंदगी और मौत दे रहा है, और बाद में इसका रंग, इसकी शक्ल, इसका शेप चेंज हो गया और कह रहा है कि कौन सा दिन है, क्या टाइम है, पूछ रहे हैं। फिर घड़ी दूसरी मरतबा देखी, फिर कह के चलो करीबी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े। जब जमाली हालत में है तो वो खुदा का बंदा बन के हमारी और आपकी तरह रहता है। वो क्या है, कौन सी हस्ती है, ये इस चीज के ऊपर डिस्कस हमें नहीं करना। वो जरूरी है, हाँ हमारे अमाल अच्छे हैं, हमारी इबादत बंदगी तमाम चीजें अच्छी हैं, तो आपको इतना ही जलाल में वो नजर आएगा जैसो जे वो मन तेवी गुर निवाचा, और इसके फरामीन भी आपको हमको समझ में आएंगे। अगर आम तौर से अगर हम इसको देखेंगे, हमें आम लोग की तरह नजर आएगा। बड़ा भगत कबीर ने कहा, बड़ा बड़ाई न करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहवे लाख हमारा मोल। जो बड़ा है ना, कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता और बड़ी बड़े बोल अल्फाज यूज नहीं करता, बस इस तरह कि हीरा मुख से ना कहवे लाख हमारा मोल। हीरे ने कभी नहीं कहा कि मेरी कीमत लाख है, वो तो परखा जाता है। केवा सरीखो નથી મારો સામી, એ તો જોવા સરીખો છે અલખ અનામી રે। उसकी ताकत पीर जानते थे। पीर ने ज्ञान में फरमाया, कीड़ी के पांव झांझर बजे। कीड़ी तो हमें खड़े हो जावे तो मुश्किल से जमीन पर चलती हुई नजर आए, उसके पांव में भी अगर घंटी बंजी हुई, अगर कोई घंटी रख दे, झंझरा रख दे, तो वो कितना पतला होगा। उसकी भी आवाज पीर फरमाते हैं, कीड़ी के पांव झांझर बजे, सो भी साहिब सुनता है। यह है मौला की ताकत। ये हमारा आपके साथ मिलकर बात कर रहे हैं, यह हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, समझना है।
लेकिन बाहर हम ये चीज नहीं डिस्कस कर सकते। हमारे बच्चों से भी ये सवाल करते हैं, बच्चों को हमें ये चीजें नहीं सिखानी, अल्लाह, इमाम, नबी और इस तरीके से ABCD XYZ वो खुद समझेंगे। आप पहले से XYZ कहो तो पहले से सब चीज चौपट हो जाती है। बच्चे को ABCD सिखाओ, क्योंकि स्कूल में भी वो ABCDEF सीखते हैं। हम इसको XYZ की बातें करें तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, बच्चों के अंदर, ज़हन के अंदर उलझन पैदा हो जाती है। सबा के वक्त जैसे कि मैंने बताया, मौला हमारे साथ जिस हालत में हम हैं वो इसी हालत में हम देखते हैं 10% जमाली हालत और 90% 10% जमाली हालत में और जलाली हालत में और 90% अपने जमाल में रहते हैं। सुबह के वक्त मिसाल दूं कि बाप और बेटे अगर जॉगिंग करे, बाप की उम्र 35-40 साल की हो और बेटा अगर 10-12 साल का हो, दोनों साथ में बाप बेटे जॉगिंग करे अर्ली इन द मॉर्निंग दुआ के बाद, तो ऐसा हुए कि बाप अपनी रफ्तार से भागे, बेटा अपनी रफ्तार से भागे, बाप और बेटे में फर्क हो जाए 2-4 गज का, बाप आगे निकल जाए और बेटा पीछे रह जाए, तो बेटा जमीन पर बैठ जाता है कि पापा मैं आपके साथ जॉगिंग नहीं कर सकता हूं, आप तो बहुत तेज भाग रहे हो। तो बाप ने देखा कि ये अच्छी बात नहीं है, मेरा बेटा ना हिम्मत ना हो जाए, तो वो पीछे रिवर्स होकर बच्चे के पैरेलल आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की रफ्तार से भागता है। चूंकि उसकी वो नेचुरल वे से नहीं भागता, तो दुनिया क्या कहेगी कि बाप बच्चे की तरह, लेकिन दुनिया को क्या पता कि बाप क्यों बच्चे की रफ्तार से चलता है इस तरह, इसलिए कि बच्चा ना हिम्मत ना हो जाए। ये मौला खुदा का नूर है, अगर वो अपनी रफ्तार से दुनिया में चले तो हम सब जमीन पर बैठ जाएंगे, और सब जमीन पर बैठ जाएंगे। और जब वो हमारी रफ्तार से अगर चलता है तो बात तो सही है, लेकिन हम में से भी ऐसे नादान है क्या कहेंगे कि बाप हमारी तरह है, देखो जैसी रफ्तार से वो भागता है ऐसा हम भी भागते हैं। लेकिन ये नहीं देखता बेटा कि ये हमारी वजह से हमारा बाप ने ये स्पीड पकड़ी है, जो कि उसकी ओरिजिनल स्पीड नहीं, हमारे खातर ये हमारे साथ ये भाग रहा है। तो हमें ये चीज देखनी और समझनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, ज़ाहरी और बातिनी चीजें बाहर के अंदर करना, बाहर के लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, किसी तरीके से इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ना उसके साथ तरीका मैटर में किसी किस्म का कंप्रोमाइज। दीन की बातें बाहर अगर करो तो क्या है कि उनके ज़हन में ये चीज़ें नहीं, हज, रोज़ा, ज़कात, नमाज से बढ़कर और कुछ नहीं। और ऐसी हालत में हमारे मज़हब की जो बातें हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मौलाना रूम ने इसकी मिसाल दी है कि शेरनी का दूध लो 2 बर्तन में, एक पीतल के बर्तन में और सोने के बर्तन में, रात को रखो शेर का दूध, शेरनी का दूध पीतल के बर्तन में थोड़ा रखो, थोड़ा सोने के बर्तन में रखो। सुबह उठोगे देखोगे पीतल के बर्तन का दूध फिट जाएगा, खराब हो जाएगा। सोने के बर्तन में रखा हुआ दूध कभी खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा। ये दूध क्या है, इमाम का राज है। ये सोने का बर्तन क्या है, ये मोमिन का दिल है। ये पीतल का बर्तन क्या है, ये गैर इस्माइली का दिल है। कौन इमाम के राज को अपने अंदर समा सकता है, ये आप खुद समझ सकते हो। किसके दिल में ये चीज फिट जाती है, रह नहीं सकती, ये हमें समझना चाहिए। तो इसी तरह एक मिडल पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ती है, और इसमें हमें तकिया करना पड़ता है। और तकिया करने से क्या है, तकिया इज ए प्रिंसिपल विच वी बिलीव। ये पेरिस कॉन्फ्रेंस 1975 में अप्रैल महीने में मौला ने फरमाया कि तकिया इज ए
तकिया इज द प्रिंसिपल विच वी बिलीव। और हम शिया हजरात सब कोई जो है अपने चीजें, बातूनी चीजें, हम ज़ाहिरी जो चीजें हैं हमारी, जो गैर को अगर पता है और वो करते हैं, डजंट मैटर, कोई ऐसी बात नहीं। बातून की चीजें जो वो नहीं समझते, वो चीज पर तकिया अगर हम न करें, बाहर के लोग नहीं समझ सकेंगे और गुनाह है। पर्दापोशी करने के लिए मौला का हुक्म है। तो इस चीज को सामने रखते हुए मैं आपको ये बताता चलूं कि इस्लाम में उसूल दीन और फुरूए दीन, उसूल दीन जो है उसमें 5 चीजें हैं और फुरूए दीन में भी 5 चीजें हैं। उसूल दीन में 5 है: अदल, तौहीद, रिसालत, इमामत, क़यामत। फुरूए दीन में है सलात, सोम यानी नमाज, रोजे, हज, ज़कात और जिहाद। उसूल किसको कहते हैं? उसूल फंडामेंटल को कहते हैं, रूट को कहते हैं। आप एक दरख्त है, दरख्त के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जमीन के अंदर है और एक हिस्सा जमीन से बाहर है। जो जमीन के अंदर जो रूट है, इसकी जो जड़ है, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको उसूल कहते हैं अरबी में। जो हिस्सा हम देख सकते हैं, जो बाहर का हिस्सा है, उसको फुरू कहते हैं। फुरू की लफ्जी मायना है ब्रांचेस, शाख। जो चीज हम देख नहीं सकते वो बेसिक रूट है, जड़ है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं, वो अटल है। क्या है? अदल, तौहीद, रिसालत, इमामत और क़यामत। ये इसके ऊपर जो हमें सिखाया ये अटल है। लेकिन फ्रू जो हम ज़ाहिर में देख सकते हैं वो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद। उसूल में तो सब मानते हैं मगर तशरी अलग अलग करते हैं और फुरूए दीन के अंदर भी अलग अलग तशरी रखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं सलात। कोई भी सवाल हो पहले बेसिक समझाना पड़ता है कि सलात है क्या चीज। सलात लफ्ज कुरान में 82 जगह पर इस्तेमाल हुआ है, 82 टाइम पर। इसका असल लफ्ज था सलोता। सलोता का मतलब है झुकना, दुआ या बंदगी को भी कहते हैं। झुकना यानी सजदा करना, सलोता। लफ्ज जो नमाज है ये फारसी लफ्ज है, ये अरबस्तान का अरबिक लफ्ज नहीं। ये सबसे पहले ये लफ्ज अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुआ था, बाद में इंडिया, पाकिस्तान में ये लफ्ज इस्तेमाल होता गया। लेकिन जब भी आप मिडिल ईस्ट जाओ वहाँ कोई नमाज नहीं कहते हैं, इसको फारसी में नमाज जो इस तरह ईरान के लोग कहते हैं, अफगानिस्तान के लोग कहते हैं, फारसी में ये लोग सलात कहते हैं। हमारे इमाम ने ज़ंज़िबार में 5 जुलाई सन 1899 में ये फरमान किया था। मौला ने फरमाया, तुम जमात खाने में आकर बंदगी करो, दुआ पढ़ो। नमाज और दुआ में कुछ फर्क नहीं। लफ्ज सलात जो है इसकी लफ्जी मायना मैंने बताया दुआ, बंदगी, सुकून या झुकना है, और यही मायना नमाज जो फारसी लफ्ज है। अब लफ्ज में डिफरेंस आ गया, एक कह रहा नमाज और एक कह रहा दुआ। मौला को कहना पड़ा, फरमान करना पड़ा कि दुआ और नमाज में कोई फर्क नहीं। जो फर्क समझते हैं उसके लिए ये फरमान किया। अब सलात या नमाज कैसे राइज हुई उसको हम देखें कि एक सूरा है कुरान की, सूरे फातिहा, जो मक्का में भी नाजिल हुई और मदीना में भी नाजिल हुई। जब मक्का में नाजिल हुई, मक्का वाले 13 साल रसूलुल्लाह ने नबूवत की मक्का में, बाकी के 10 साल नबूवत की मदीना में। इस तरह 23 साल की नबूवत के पीरियड के दरमियान हम देखें कि इवोल्यूशन ऑफ सलात क्या था। मक्का के अंदर मुसलमान आज़ादी से
जिंदगी बसर नहीं कर सकते थे। आपको मैं ये समझाने के साथ साथ ये बताऊं कि इमाम के फरमान के अंदर एक वर्ड आता है सिंगुलरिज्म और प्लूरलिज्म। मजहब की जिस मुल्क, जिस इलाके में एक ही तशरीह हो किसी भी मैटर के ऊपर, उस जगह को, उस माहौल को सिंगुलरिज्म कहते हैं। अगर एक से ज्यादा अगर तशरीह हो उसको प्लूरलिज्म कहते हैं। मैं इसकी मिसाल दूं, सऊदी अरेबिया में सिंगुलरिज्म है, वहां वहाबी या अहले हदीस की तशरीह के सिवा और कोई फिरके या किसी की तशरीह इजाजत नहीं। ईरान के अंदर फिक्का जाफरिया के सिवाय किसी किस्म की मजहब की तशरीह की इजाजत नहीं, वहां सिंगुलरिज्म है। कुछ अर्से पहले अफगानिस्तान के अंदर देवबंदी सुन्नी का राज था, इसलिए वहां सिंगुलरिज्म था। अब जहां पर एक से ज्यादा तशरीह हो यानी वेरियस किस्म के फिरके हो, आजादी हो, जैसे पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, अब अफगानिस्तान में है, तो उस जगह पर हम आजादी से रह सकते हैं। मक्का के अंदर रसूलुल्लाह जो जिंदगी 13 साल की गुजारी, नबी थे, लेकिन जिंदगी और माहौल कैसा था? सिंगुलरिज्म था, क्योंकि बाहर चौक में सब जगह बुत परस्ती होती थी, इसके सिवा किसी को इजाजत नहीं। कितनी सख्त और भारी हालत में रसूल नमाज पढ़ते थे खाने काबा में, और नमाज कैसे पढ़ते थे? अब मदीना में जब आए, मस्जिद कुबा बनाई, मस्जिद नबी भी बनाई, और वहां मिसाक मदीना के तहत यहूदी को भी इजाजत थी कि तुम जैसा मजहब पालो, हम भी अपना मजहब पाले। यानी मक्का में सिंगुलरिज्म था, मदीना में प्लूरलिज्म था। अब जब मक्का में सिंगुलरिज्म था तो सिर्फ लोग क्या पढ़ते थे? सूरे फातिहा पढ़ के अल्लाह की तारीफ करके सजदा करते थे। ये थी सलात की हालत। 13 साल के अंदर मुसलमान शुरू में कद्दा की हालत में नमाज पढ़ते थे, यानी जमीन पर बैठ जाना, बैठने को कद्दा कहते हैं। इसमें कयाम आया, इसमें रुकू आया। कयाम और रुकू इसलिए आया कि कई कहते हैं, तारिक नवीस, इब्ने असीर ने भी कहा है, इब्ने इसाक ने भी कहा है कि मुसलमानों को अगले मजहब से, क्योंकि बुत परस्ती को छोड़ा, कई ऐसा नहीं था कि जल्दी छोड़ दे, कई लोग बगलों में, कोई लोग कमर में छोटी छोटी मूर्तियां अपने साथ लेकर नमाज छुप छुप के पढ़ते थे। अब रसूल को ये पसंद नहीं था कि मैं इनको कहूं। अब चूंकि इस वक्त इस्लाम जूले में है और इनको बुरा लगे, तो रसूल ने बाजमात लोगों को बुरा न लगे तो एक तरीका निकाला कि तुम तकबीर करो, यानी खड़े हो जाओ कयाम की हालत में। अब खड़े होते तो कमर में किसी ने अगर बुत अगर बांधे छुपा कर, तो वो ज़ाहिर हो जाते थे। और तकबीर इसलिए कि बगल में अगर मूर्तियां होती तो वो गिर जाती थी। कहने की बात नहीं, अल्लाह और उसका रसूल जो है ना, आज मैं थोड़ा टाइम लूंगा। अभी हाजिर इमाम सन 2000 में पाकिस्तान का टूर किया। 27 अक्टूबर को हाजिर इमाम ने गार्डन जमात खाने दरखाना में 3:45 बजे आखिरी दीदार दिया। उसके कुछ देर पहले यानी 2:30 बजे हाजिर इमाम टेकरी की विजिट ली। लीडर्स थे। मौला की गाड़ी ऊपर गई ना टेकरी पर, तो जमीन पर कुछ गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। सामने लीडर्स वगैरह और भी लोग जमा थे। मौला जमीन पर झुककर वो तमाम फूलों को उठाकर एक तरफ रख दिया और अंदर चले गए देखने के लिए। एक चीज होती है कहने की, एक होती है कहने की नहीं, अमल से दूसरा समझ जाए कि यहां पर मौला बजाय ये कहे कि देखो इसकी एक एक चीज की तुम हिफाजत करना, ये कहने की जरूरत नहीं है। मौला ने जमीन पर पड़ी हुई गिरी हुई चीज को उठाकर एक साइड पर रखकर हमें क्या तालीम दी कि तुम भी ऐसा अमल करना। कहने की जरूरत नहीं है। हसन और हुसैन छोटे थे, हजरत इमाम हुसैन, आपने ये रिवायत सुनी है, मस्जिद में दाखिल हुए, देखा कि एक साहबी गलत किस्म का वजू कर रहे हैं। बजाय उसको कहे तो वो कहेंगे तुम छोटे हो, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले। तो उसके बाजू में जाकर वजू करना शुरू किया और एक भाई ने दूसरे को कहा
ہمارے نانا جان کیسے وضو کرتے تھے، چلو آج اس طریقے کے مطابق ہم وضو کریں. تو امام حسن نے کہا ایسے، امام حسین نے کہا ایسے ہاتھ دھوتے تھے، اس نے کہا ایسے ہاتھ دھوتے تھے. اب وہ جو غلط وضو کر رہا وہ بازو میں دیکھ رہا ہے، تو اس نے احساس اس کے دل میں پیدا ہوا کہ مجھے بھی ایسا وضو کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ وہ بڑا تھا، اگر اس کو ڈائریکٹ کہتے تو برا مانتا. یہ دونوں بھائیوں نے اس طرح وضو کر کے وہاں سے چلے گئے. تو بعد میں اس شخص کو احساس ہوا، اس نے اسی طریقے سے وضو کیا. 1920 کے اندر جب وائس چانسلر کا مولانا امام سلطان شاہ کو کنووکیشن کے اندر فرسٹ وائس چانسلر مقرر کیا علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر، ایک انگریز مولا کے ساتھ تھا. کنووکیشن ہال کے اندر جا رہے ہیں، مولا نے ہیٹ پہنا ہے، انگریز نے بھی ہیٹ پہنا ہے. اتنے میں کنووکیشن کے ہال کی طرف جیسے ہی جا رہے ہیں، اذان ہوئی، مولا کھڑے ہو گئے، ہیٹ نکال کر ادب سے کھڑے ہو گئے. اس کو دیکھ کر وہ انگریز بھی ہیٹ اتار کر مولا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اذان ختم ہوئی تب تک مولا وہاں کھڑے رہے، احترام کرنے لگے. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے ایکشن اور عمل سے دوسروں کو ہدایت کرنا. اب اپریل میں ابھی مولا نے ہیوسٹن کا نیا جماعت خانہ کھولا، اور آپ نے ویڈیو فلم میں بھی دیکھا ہوگا. غیر کو اندر لے آئے، غیر ان کو مولا نے پورا جماعت خانہ دکھایا، یہ ہے، یہ ہے. جب اندر جانے کی بات ہوئی، اب سب کے پاؤں میں جوتے، تو مولا نے خود پہلے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کے جوتے اتار دیے. تو اس کو دیکھ کر لائن سے جتنے نون اسماعیلی جس کو اندر جانا تھا مولا کے پیچھے ساتھ ساتھ، انہوں نے بھی خاموشی سے جوتے اتار. کئی چیزیں ایسی ہیں ڈائریکٹ آرڈر کرتے ہیں نبی اور رسول، کئی چیزیں ہیں اپنے عمل سے سامنے والوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. کہہ دے کہ تم لوگ بغل کے اندر مورتیاں لے آتے ہو چھپا کر، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس وقت مسلمان ابھی مذہب عروج پر اب شروع ہوا، ایسے حالت میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کی ضرورت نہیں تھی، پیار و محبت کی تھی. اور ہمارے لیے بہترین نمونہ تھا، رسول نے تکبیر نکالی، بس سمجھنے والے سمجھ گئے کہ رسول نے یہ تکبیر کیوں نکالی. لیکن وہ سمجھ آج تو نہیں نا، وہ تو بس سنت کی ایک جو سل لگی ہوئی ہے، بس سنت رسول کی ایک جو سل لگی ہوئی ہے، اسے تو ہٹنے کا نام نہیں لے. مگر دیکھتے نہیں ہے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں. کوئی مجھے اگر کہے نا کہ آپ تکبیر پڑھتے ہو، میں بولا اس لیے تکبیر نہیں کرتے کہ ہم دعا کے وقت بغلوں میں مورتیاں نہیں لاتے. تم لاتے ہو، کامن سینس تو کوئی چیز ہے. اصل چیز رسول نے جو سکھائی تھی سب دیکھاتے ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اور سجدہ کرو، اور آہستہ آہستہ اس طرح نماز کے اندر میں نے آپ کو بتایا یہ جو نماز سورہ فاتحہ اور سجدہ، پھر دیکھو اس میں ڈیولپمنٹ کیسا ہوتا ہے. چپ رہنا، ادب کرنا، سب کو یہ بتایا کہ ہاتھ اس طرح نیچے ہو اور خاموشی سے کسی کا جواب نہ دو اور تم نماز پڑھو. مزید اس کے اندر اضافہ آیا، کوئی نماز پڑھ کے اٹھ کے باہر جائے یا کوئی باہر سے اندر آئے تو سب دیکھتے گیٹ کی طرح، جس طرح ہم یہاں دیکھتے رہتے ہیں نا ڈیورنگ لیکچر، کوئی آ جائے تو ہم نہیں پیچھے دیکھتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوئی. وہ مومن کامیاب ہے. قرآن کی یہ آیت سورہ مومنین کی 1 اور 2 آیت ہے. وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خوف رکھتا ہے. خوف کے لیے یہ عام لفظ استعمال ہے، خشوع کا مطلب ہے جھکنا، آنکھیں نیچی کرنا یا ڈرنا. رسول سے جب اس کی تشریح پوچھی، رسول نے فرمایا نماز کے وقت اللہ نے جو تمہیں سمجھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آنکھیں بند کرو. اس کا مطلب اس کے پہلے آنکھیں کھلی تھی، اب آنکھیں بند کرو. تو اندر دنیا، کوئی بازار میں گھوم رہا ہے، کوئی جنگ میں میدان میں ہے، یعنی اندر آنکھیں بند ہے لیکن دنیا اندر چھائی ہوئی ہے، اور فیملی یاد آ رہی ہے کچھ کر، اور نماز میں دھیان نہیں. قرآن کی سورہ مزمل کی 8ویں آیت میں خدا نے فرمایا
ہر چیز سے کٹ کر اس کے طرف ہو جاؤ، کٹ کے اس کے طرف ہو جاؤ، کٹ آف ہو جاؤ. اس کے لیے لفظ ہے تبتیل یعنی کٹ آف ہو جاؤ. یا رسول نے آہستہ آہستہ آتی گئی، رسول نے نماز میں چینجز کی، اور اس طرح 23 سال کے درمیان پاکستان کے اندر جتنا رسول سے ہو سکا نماز کو ایک شکل دی. اب عربستان کے بعد حضرت عمر کے دور میں عرب سے اسلام باہر نکلا، خاص کر کے ایران کے اندر اسلام آیا. اب جب عربستان سے بعد ایران میں جب اسلام آیا اور مصر تک گیا، یمن تک گیا، ہندوستان تک آیا، تو ویریس قسم کے سوالات پیدا ہوئے، ویریس قسم کے کوشچن پیدا ہوئے، طرح طرح کے مسئلے کھڑے ہوئے. اب نبی تو تھا نہیں ان کے پاس، تو پوچھے کس سے؟ کیونکہ امامت کے سلسلے سے یہ لوگ الگ تھے. ایسی صورت کے اندر جس کو جو مرضی میں آئے وہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، جو چیز آتی، یہ ارکان فروع دین پالتے تھے. یہ 150 سال تک چلتے چلتے اس وقت 4 حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں 4 امام مالک، امام حنفی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سنیوں کے امام کھڑے ہوئے. ان لوگوں نے اس کو فائنلائز کیا، اس کو ایک لاسٹ ٹچنگ دی. ایک نے ایسا ٹچنگ دی کہ نہیں نماز ایسا نہیں ایسا پڑھنا چاہیے، دوسرے نے کہا ایسا نہیں ایسا پڑھنا چاہیے، اس نے کہا ایسا نہیں ایسا. تو جس نے پہلے کی ٹچنگ کو مانا وہ حنفی کہلائے، دوسرے ملکی کہلائے، تیسرے شافعی کہلائے، چوتھے حنبلی کہلائے. اور چاروں کے الگ الگ طریقے. اور اس زمانے میں امام جعفر صادق کو ماننے والوں نے فقہ جعفریہ کو پرائرٹی دی. اس طرح یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ رسول کے 150 سال کے بعد فروع دین، کیونکہ اصول میں تو کچھ کمپرومائز نہیں ہے، فروع دین کے اندر کچھ چینجز کی ضرورت پیش آئی، اس لیے اس کو ریوائز کیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ تو ضرور ہے نا کہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ ہر رسول کے 150 سال کے بعد اس کو ریوائز اکارڈنگ ٹو ٹائم کرنا چاہیے. لیکن مسلمان نے 150 ہجری تک تو اس کو ریوائز کیا، پھر سن 300 میں کسی نے ریوائز نہیں کیا، 450 ہجری میں کسی نے ریوائز نہیں کیا، پھر 450 کے بعد 600 ہجری میں نہیں کیا. اس طرح 1400 سال میں کسی نے اس کو ریوائز نہیں کیا. اگر ریوائز کرتے تو وہ نماز اپڈیٹ ہوتی اکارڈنگ ٹو ٹائم، اور اگر اپڈیٹ کرتے یقیناً اس کی شکل ایسی ہوتی جیسے آج اسماعیلی میں اس کی شکل ہے دعا. اب اتنا اس میں اور ہمارے اندر کیا فرق ہے یہ خود آپ سمجھ سکتے ہو. وہ ایک حد تک اس کو ریوائز کرنے تک محدود ہو گئے اور آگے نہیں بڑھے. الگ الگ طریقے. قیام کی حالت دیکھو، قیام کی حالت میں صرف آپ کو میں مثال دوں. ابو حنیفہ نے کہاں سکھایا؟ یہ جو ناف ہے اس سے ہلکا سے نیچے آپ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. امام شافعی نے یہ سکھایا کہ آپ کے ناف کے نیچے یعنی یہاں ناف کے ہلکا نیچے یہاں ہاتھ نہیں ہونے چاہیے، لیکن بریسٹ یعنی سینے کی طرف آپ کے دونوں ہاتھ ہونے چاہیے. امام مالک نے کہا کہ یہ دونوں طریقے غلط ہے، چیسٹ یعنی سینے اور ناف کے درمیان آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے. امام جعفر صادق کی فقہ جعفریہ نے کہا کہ یہ چاروں طریقے کو چھوڑو، نہ یہاں رکھو یہاں رکھو، ہاتھ کھلے رکھ کے دعا پڑھو، نماز پڑھو. اب یہ دیکھو یہ طریقے جو الگ الگ ہے، اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ مسئلے ظاہری ہے، اس سے خدا خوش نہیں ہوتا. اصل چیز انسان کی نیت ہے، تقوی اور پرہیزگاری، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں. 23 سال نبی نے، میں تو کہتا ہوں نا کہ رسول غار ہیرا میں گئے شادی کے بعد، 30 سال کی عمر میں غار ہیرا میں جاتے تھے. زیادہ کہتے ہیں کہ 35 سال کی عمر میں یہ گئے تھے غار ہیرا میں، اور 40 سال کی عمر جب ہوئی تب اس کے اوپر نبوت نازل ہوئی.
5 साल इसने वहाँ पर खुद शनासी की, सेल्फ रियलाइजेशन किया और इबादत की, जिक्र किया, तब इसको ये दर्जा मिला। और नीचे आए तो अल्लाह के साथ इसका कांटेक्ट हुआ, अलग अलग तरीके से उसने समझाया। 23 साल नबूवत का पीरियड रहा। इस 23 साल को उस 5 साल गारे हिरा से कंपेयर करो। कौन सी ऐसी इबादत रसूल ने की थी कि खुदा उसके ऊपर खुश होकर उसके ऊपर नबूवत नाजिल करके इसको नूर नसीब हुआ। अब उस तक पहुंचने के लिए लोगों को बताना तो था, लेकिन लोग समझने के लायक कहाँ थे। इसको तो शुरू से बिगिनिंग ABCD सिखाना था, ताकि उनको बाद में ये बतावे कि ये गारे हीरा में मैंने क्या किया। अब चूंकि गारे हीरा की बातें तो लोग पूछते थे, मिराज की बातें पूछते थे, तो रसूल इसको रिवायतें, कहानियों की सूरत में समझाया कि बस उसके दिमाग और अक्ल के मुताबिक जितनी चीज़ें वो समझ सकते हैं ऐसा ही समझाया, और उन्होंने ऐसा ही समझकर आज तक इसके ऊपर अमल करते हैं। एनीहाउ, हमारा तरीका है, बातूनी तरीका है, फ़कीरी तरीका है, दरवेशी तरीका है, इस्लाम का एसोटेरिक तरीका है। हमारी ये दुआ, हमारी ये नमाज है। हमारी ये दुआ और हमारी जो नमाज है, हम देखते हैं कि 5 वक्त की नमाज होती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा। ये 5 वक्त की जो नमाज पढ़ते हैं आम तौर से लोग, मगर हम इसमें से क्या है, फजर, ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ते हैं। यानी सुबह की फजर की नमाज, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज। कुरान में कम से कम 3 वक्त की नमाज का जो जिक्र आता है, सूरह हूद आयत नंबर 114, कहीं पूरे कुरान में 5 वक्त की नमाज का जिक्र नहीं। आयत इस तरह है, और दिन के 2 किनारे और कुछ रात गुजरने के बाद सलात कायम करो। सूरह हूद आयत नंबर 114। और दिन के 2 किनारे, ये 2 किनारे हैं ना, मुफस्सिरीन कहते हैं कि सुबह और शाम को कहते हैं। और दिन के 2 किनारे और कुछ रात गुजरने के बाद, अब दूसरे किनारे को रात कहा है, कुछ रात गुजरने के बाद, इसके लिए कुरान में है जुल्फम मिनल लैल, कुछ रात गुजरने के बाद तुम सलात कायम करो, सुबह और शाम, दिन के 2 किनारे और कुछ रात गुजरने के बाद, यानी तीसरी सलात। और जगह पर खुदा ने हमें जो समझाते हैं कि ये जो 3 वक्त की जो मक्का के अंदर नाज़िल हुई, ये 3 वक्त की नमाज हुई, सुबह की जो मगरिब की फजर की जो सलात थी, मुसलमान उस वक्त पढ़ते थे कि एक आदमी अंधेरे में सुबह को, घड़ी तो नहीं थी, बमुश्किल किसी को देखकर या किसी के पड़ोसी को देखकर, यानी ये कम से कम समझ जाता था कि ये कौन शख्स है। लेकिन अगर कोई औरत उस वक्त गुजर जाए उस टाइम में, तो वो पहचान नहीं सकता था, यानी ठीक ठीक अंधेरा होता था सुबह के वक्त में। शाम के वक्त यानी दूसरे किनारे के वक्त, उस वक्त नमाज पढ़ते थे कि अगर जमीन से किसी ने अगर तीर कमान के अंदर डालकर फेंके तो अपनी जगह खड़े रहकर वो गिरी हुई तीर को कम से कम देख सकता था। ऐसा हल्का अंधेरा भी था और रोशनी थी। ऐसे टाइम पर ये लोग मगरिब की नमाज पढ़ते थे। और जुल्फन मिनल लैल, यानी कुछ रात गुजरने के बाद, ये वो पीरियड पे तीसरी दुआ नमाज पढ़ते थे जब अब दिए जलने की जरूरत पेश आती थी। ये तीनों चीज बुखारी ने अपनी अपनी तरीके से बताया है। और कुरान में दूसरी जगह खुदा ने जो 3 वक्त की नमाज का जो जिक्र किया है वो है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 78। आयत में खुदा ने फरमाया, और सलात कायम करो सूरज डलने से रात की तारीकी तक, और फजर की सलात कायम करो। और सलात कायम करो सूरज डलने से रात की तारीकी तक। यहाँ कुरान में लफ्ज दौलुक इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब सूरज का झुकना। जैसे सूरज झुके उसको मगरिब कहते हैं। गस की लैल रात की तारीकी को कहते हैं। और
फजर की सलात और तीसरी सुबह की सलात। अब देखिए दिन का कहीं जिक्र नहीं। और सलात कायम करो सूरज ढलने से रात की तारीकी तक, और फजर की सलात कायम करो। वाज़े तौर से 3 वक्त की ये जिक्र है। और इसके साथ आप देखते हो कि पहली नमाज आमतौर से 5 जो नमाज पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। फजर की नमाज सुबह को, अर्ली आफ्टरनून जोहर की नमाज, लेट आफ्टरनून असर की नमाज, सनसेट हो मगरिब की नमाज, और रात का वक्त ईशा की नमाज। अब इसमें सेकंड जो नमाज है जोहर, ये फ्राइडे के दिन पढ़ी जाती है। इसको जुमे की नमाज कहते हैं। फ्राइडे की जो है जुमे की नमाज। जुमे की नमाज अगर किसी को आम पब्लिकली अगर कोई पढ़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ सकता है, पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सकता है, हम तो पढ़ते हैं शाम को। हम लोग क्या है कि शाम की जो नमाज है, हमारी मगरिब की जो नमाज है, इनकी जोहर की नमाज को ये जुमे की नमाज करते हैं। हम शाम की मगरिब को नमाज को, शाम की नमाज को फ्राइडे की जुम्मे की नमाज कहते हैं। कुरान के अंदर 2 लफ्ज है डे के लिए, डे दिन, यौम और नहार। अब देखिए 24 घंटे अगर जिस डे दिन के अंदर हो, 24 आवर, उसको अरबी में यौम कहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सूरज की हाजिरी तक के पीरियड को अरबी में नहार कहते हैं। सूरज जुमा की पहली आयत है न कि जब अजान का वक्त हो कि तुम अपना लेन देन कारोबार छोड़कर नमाज के तरफ आओ। ठीक है, इसमें देखो यौमुल जुम्मा लिखा हुआ है, निहारुल जुम्मा नहीं लिखा है। यौम वर्ड यूज किया खुदा ने, यौमुल जुम्मा। अगर यौम वर्ड यूज किया इसका मीन्स 24 आवर में कभी भी। अब ये भी जानते हैं 24 आवर में कभी भी कोई 1 बजे पढ़ता है, कोई 10 पे पढ़ता है, कोई 20 पे पढ़ता है, 45 पे पढ़ता है, कोई 2 बजे पढ़ता है। क्योंकि यौम वर्ड है तो सब तुम लोगों ने अलग अलग तरीका किया है, तो हम शाम को पढ़ते हैं। क्योंकि यौम वर्ड है 24 आवर में कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर निहार वर्ड होता तो शाम से पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो फ्राइडे प्रेयर हमारी शाम को, और स्पेशली उस वक्त गटपाट आबि शफा है और हमारी सेरेमनी है। एनी हाउ, तो बेसिक चीजें ये नमाज की जो मुझे समझानी थी। और सेकंड जो फ्रू में आता है बेसिक चीज, वो है रोजा, सोम या सयाम। सोम लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कुरान में। सोम का मतलब है तर्क करना, छोड़ देना, एक तरफ हो जाना। अगर एक घोड़ा खाना पीना छोड़ दे तो अरबी में कहेंगे सायम, उस घोड़े को कहेंगे सायम, क्योंकि उसने खाना पीना और भागना छोड़ दे, उस घोड़े को सायम कहेंगे। अगर एक हवा चलते चलते रुक जाए तो अरबी में कहेंगे सोम। और अगर कोई बातचीत करना छोड़ दे, जैसे को कुरान की सूरे मरियम की 26वें आयत में है कि हजरत बीवी मरियम ने बातचीत करना छोड़ दिया, यानी बात न करने का रोजा रखा कहते हैं, तो वहां पर अरबी वर्ड यूज होता है सयाम। सायम, सोम, सयाम, ये लफ्ज जो है। लेकिन इस्लामिक इस्तिलाह में 2 वर्ड हैं, सोम और सयाम का मतलब है खाना पीना छोड़ देना। सन हिजरी 2 के अंदर ये नाफिज हुआ था, और इसके लिए रमजान महीने का मंथ ऑफ रमजान सिलेक्ट किया गया था। कुरान की आयत पहली कौन सी नाज़िल हुई? सूरह बकर की आयत नंबर 183, ऐ ईमान वालों
تم پر روزہ اس طرح واجب ہے جس طرح تم سے پہلے تمہارے باپ دادا پر واجب تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، تاکہ قرآن میں یہاں لفظ ہے تتاکن۔ تتاکن کا مطلب ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تتاکن ورڈ پرہیزگار کے لیے جو ورڈ ہے، یہ لفظ اتقا سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے ایک چیز کو چھوڑنا اور خاموشی اختیار کرنا۔ اینی ہاؤ، اس سے لفظ متقی ورڈ بھی اس سے بنتا ہے۔ خدا نے 45 آیت کی سورہ کی 19ویں آیت میں بتایا خدا متقین کو دوست بناتا ہے۔ پھر تیسری سورہ کی 75ویں آیت میں خدا نے فرمایا خدا متقین لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور دوسری سورہ کی 194 آیت میں خدا نے فرمایا خدا متقین لوگ کے ساتھ ہے۔ متقین یعنی پرہیزگار، تاکہ تم متقین بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اصل کمانڈ بیسک تھا صوم کا۔ اور جو روزہ یعنی صوم رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اس کو عربی میں ساحیح کہتے تھے، اور یہ سہا سے نکلا ہے جس کی معنی ہے مسافری، اور یہ مسافری ہے روحانی مسافری۔ جب رسول اللہ نے اپنی روحانی مسافری ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج پر گئے اور ترقی کرتے کرتے آگے بڑھے، اور ترقی اس کو کب ملی؟ منتھ آف رمضان تھا، اور اس وقت یہ اسلامک اس فروع جو ہے یہ اس پر نازل ہوا تھا۔ اب ہم پر، ہم ظاہر پرست ہیں اور یہ لوگ، ہم باطن پرست ہیں، یہ لوگ ظاہر پرست ہیں۔ روزہ صبح سحری کرنا، شام کو افطاری کرنا، کہیں پر بھی امام کا فرمان نہیں کہ میں نے روزہ معاف کیا، کہیں پر بھی امام کا فرمان نہیں کہ تم پر فرض نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمیں کیوں سوال کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ بچے کی جو ٹیچریں ہیں کلاس میں یہ سکھاتی ہیں۔ بچے دن میں جاتے ہیں اسکولوں میں، دوسروں کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، اور اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کی ایک پریسٹیج ہے، عزت ہے سوسائٹی میں، اور نہیں رکھتے تو کیا حالت ہے وہ آپ کو اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ ظاہری روزہ یہ پرہیزگاری کا ظاہری طریقہ ہے، ہمارے پاس نفس کو مارنا یہ باطنی طریقہ ہے۔ ایک اسکن ڈیزیز ہو، فرض کرو کسی کو خارش کی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس دو دوائی ہے، ایک ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل۔ ایکسٹرنل میں کیا ہے؟ ڈاکٹر ایک انجیکشن مارے گا۔ انٹرنل علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر انجیکشن مارے گا کہ بلڈ کے اندر جو خرابی ہے وہ ٹھیک کر کے اندر سے اسکین کو ٹھیک کرتا ہے۔ ایکسٹرنل علاج کیا ہے کہ اس کو ایک مرہم لکھ دے گا، بیٹنوویٹ نام کی ملہم لکھ دے گا ڈاکٹر، تو وہ باہر کا علاج ہے اور وہ اندر۔ اب علاج دو ہے، اس کو ٹھیک ہو جاتا ہے، اب نہ اس کو بھی پتا نہ ڈاکٹر کو پتا کہ ایکچوئل ورک کس نے کیا، اندر سے کیا کہ باہر سے کیا۔ ڈاکٹر نے تو دو ہی دوا دے دی، لیکن دونوں نے بھی کبھی کام ساتھ کیا ہو تو بہتر ہے۔ تو اسی طرح پرہیزگاری کے لیے باہر کے فورس اور اندر کے فورس دونوں مل کر اگر پرہیزگاری دور کرنے میں مدد کرے تو آپ کو اور ہم کو کیا نقصان ہے؟ کسی وقت بھی کبھی بھی ہمیں ہمارے بچوں کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ ہم پر روزہ معاف ہے، ہم بیج رکھتے ہیں، اس لیے بیج رکھتے ہیں تو پورے 30 مہینے کا روزہ۔ جب وقت تھا مولا نے سمجھایا تھا، مولا نے یہ سمجھایا تھا کہ مومن جو ہے، مومن، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ مومن ہو؟ ہم کتنے ادھورے ہیں ہمیں پتہ ہے،
اگر ہم مومن ہیں تو مومن کے 360 دن روزے کے ہیں. 360 دن روزے کے ہیں اور روزے کا طریقہ بتایا. کھانا پینا جو ہے یہ باہر ایکسٹرنل طریقہ ہے پرہیزگاری کا. کھانا پینا تو ہم روز ہیں. دن کو ہم کیا نہیں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ صبح کو کھاؤ بادشاہ کی طرح، دوپہر کو کھاؤ وزیر کی طرح، رات کو کھاؤ رعایا کی طرح یعنی غریبوں کی طرح. کیوں؟ رات کو کم از کم سمجھو ایوریج اگر ہم ٹائم لے گئے 11 بجے ہم سو جاتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، کم از کم 5-6 گھنٹے سوتے ہیں، کوئی 8 گھنٹے سوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 7-8 گھنٹے ہم جب رات کو کھاتے ہیں تو اس سوئی ہوئی حالت میں ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں. 7, 8 یا 9 گھنٹے اگر ہم سوتے ہیں تو سوئی ہوئی حالت میں ہم کھانا نہیں کھاتے، نیند میں ہوتے ہیں. اگر نیند میں ہے تو ڈاکٹر تو کہیں گے کہ یہ سویا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ کہیں گے کہ یہ روزے کی حالت میں ہے. انگریزی میں اس کو فاسٹ کہتے ہیں نا، انگریزی میں روزے کو. صبح کو ہم روزہ توڑتے ہیں اس لیے اس کا نام ہے بریک فاسٹ. ناشتے کو ہم کہتے ہیں نا بریک فاسٹ. ظاہری طور سے تو ہر انسان روزے کی حالت میں روزانہ رہتا ہے. باطنی طریقے سے ہمیں ایکسٹرنل یعنی ایڈیشنلی ہمیں ہدایت کی. اس لیے رسول اللہ نے لفظ سحور استعمال کیا بخاری کی حدیث میں کہ صبح کی جو ناشتہ ہے، صبح کا جو کھانا ہے، اس میں خاص اللہ کی برکت ہے. دوسرے کھانے کے مقابلے میں رات بھر ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، صبح کو اچھا کھانا کھاؤ. کیوں؟ کہ اگر اس میں کولیسٹرول بھی ہے تو رات کو سو گئے تو 16 گھنٹے میں تو ڈائجسٹ ہو جائے گا. دن کو وزیر کی طرح کھاؤ تاکہ دن اور رات کے بیچ میں کم از کم 8 گھنٹے کا ہے، کچھ حد تک کولیسٹرول کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن شام کو تو غریب غربوں کی طرح کھچڑی وغیرہ کھاؤ تاکہ سونے اور رات کے کھانے کے بیچ میں 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ ہے. یہ ڈائٹنگ تو ہم اسلام نے، رسول نے اس وقت سے اشاروں میں سمجھایا جب ایک کنبے میں ایک اونٹ قتل ہوتا، ذبح ہوتا اور سب مل کے کھاتے تھے. تو اس کے کھانے کے پر کنٹرول رکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ کھانے. ابھی کوئی پرہیزگار کسی کو بناؤ تو کھاتا رہے پیتا رہے، بدن بھاری ہو جائے تو نہ اس کو ہوش رہے. گنان میں ہے نا یہ اپنے سوکریا کے اندر کہ زیادہ کھاؤ گے نیند آئے گی، پیٹ بھاری ہوگا، اس طریقے سے سستی آئے گی. تو وہ اب مسلمان کو پیش قدمی بھی کرنی تھی، جہاد بھی کرنا تھا اور جنگوں میں شرکت کرنی تھی. تو الرٹ رکھنے کے لیے، سولجر لائف پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر ڈائٹنگ وغیرہ پیدا کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز تھا کہ یہ ظاہری طور سے فوڈ کنٹرول کرے. اور فوڈ کنٹرول کرنے سے، کھانے کی کنٹرول کرنے سے کیا ہے کہ پرہیزگاری آہستہ آہستہ نہیں بلکہ تیزی سے اس کے ذہن میں داخل ہوتی ہے. اب ہم نہ ظاہری چیز کو سمجھے نہ باطنی کو چیز کو سمجھے اور ہم پہلے سے ہی فتویٰ دیتے ہوئے کہ ہم پر فرض نہیں، ہمیں خدا مولا نے معاف کر دیا. اب اس طرح ہمارے بچے باہر کے اسکولوں میں ٹیچروں میں جا کے کہتے ہیں. ایک بچے کی نادانی سے بات نکل جاتی ہے، لیکن اوریجنیٹ یہ نادانی کہاں سے ہوئی؟ ایک ٹیچر سے ہوئی. ایک ٹیچر کی نادانی سے پورے قوم کی بدنامی ہوئی. اور پورے قوم کی بدنامی جو ہے یہ ایک طرف آپ لوگ میں سے ایک ایسا طبقہ ہو جو غیروں کو سمجھاتا جا رہا ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. اور ایک بچے کی نادانی سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے کہنے پر ایک بلڈوزر گم جاتا ہے. تو روزے کے بارے میں یہ جو ہے فروع دین کا حصہ ہے. بیج جو ہے اس کا فروع دین سے تو تعلق ہے ہی نہیں. یہ تو ایک کسٹم اور ہماری ایک ٹریڈیشن ہے پیر شمس کے زمانے سے. اور کیوں نہیں؟ آپ بخاری کی حدیث یعنی 30ویں چیپٹر کی پہلی حدیث آپ دیکھو بخاری کے اندر کہ رسول 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے.
हजरत उमर ने ये रसूल से परमिशन ली कि मैं महीने में एक मरतबा रोज़ा रखूंगा। रसूल ने कहा रखो, क्योंकि हजरत दाऊद भी महीने में एक मरतबा रोज़ा रखते थे। आज कोई ना महीने में एक मरतबा रोज़ा रखता है, ना कोई 10वीं मुहर्रम को रखता हो, लेकिन ये अरब के दस्तूर के हिसाब से क्यों 10वीं मुहर्रम को रसूल ने रोज़ा रखा? क्योंकि कुरैश कबीले की एक रिवायत थी। हमारे पीर शम्स ने इंडो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ हमें सिखाई। आपको पता है, तकरीबन कहते हैं हदीस शाइस्ता बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, निसाई, अबू दाऊद और तिरमिजी 6 हदीस लिखने वालों में अगर आप देखो तो जुम्मा के मुतलिक, फ्राइडे के मुतलिक 10 ऐसी हदीसें हैं जिसमें ताकत है कि फ्राइडे की फजीलत क्या है। और दूसरी तरफ देखो तो 15-16 ऐसी हदीस है जिसमें चांद रात की फजीलत बयान की है। अब चांद रात फ्राइडे को आ जाए तो आप सोचो फजीलत में कितना इजाफा हो जाता है। तो हमें एक कस्टमरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया कि उस दिन तुम ज़ैद परस्तों की तरह एक रोज़ा रखना। और पेरिस कॉन्फ्रेंस 1975 में इसको मौला ने बीज को बहाल रखा कि जो रख सकते हैं वो रखे। इसको ये सेंस में न लो कि हमने एक बीज रखा गोया 30 रोजे पूरे हो गए, अब हम 30 रोजे नहीं रखेंगे। ये तो कोई लेन देन जैसी बातें आप कर रहे हो या कोई इस तरह की बातें कर रहे हो, वो फुरूए दीन है, उसका मकसद अलग है। ये ट्रेडिशनल कल्चरल रोज़ा है, इसका मकसद अलग है। तो रमज़ान के जो रोज़े हैं, इसके साथ जो तीसरी चीज़ जो है जिसका हम डिस्कस करेंगे, और वो है दसून। दसून जो है, पहले तो ये देखो कि कटौती, डिडक्शन और पेमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 41 में खुदा ताला ने यह आयत नाजिल की, ऐ मुसलमानों। पहले तो क्या है कि मक्का के अंदर तो ऐसी आयत नाजिल नहीं हुई, गरीब गुरबा थे सब। अब जब मदीना में आए तो 3 जंगें हुई, जंग बदर, जंग ओहद और जंग खंदक। अब मुसलमान की माली हालत बेहतर होती गई। बनु खजरज और बनु औस कबीले के लोग मदीना में खेती बाड़ी करते थे, उनकी माली हालत बेहतर होती गई। जब माली हालत बेहतर हो गई और उसमें गरीब भी थे, अमीर भी थे, नो डाउट, लेकिन निस्बतन ठीक ठीक हालत हो गई, तब मुसलमानों के लिए ये आयत नाजिल हुई। सूरह अनफाल की 41 में आयत, और मुसलमानों तुम जान लो कि यकीनन जो कुछ तुमने माल गनीमत से लिया है उसमें बेशक खुम्स खुदा, पैगंबर, पैगंबर के घर वाले, यतीमों, मिस्किनों और मुसाफिरों के लिए है। अब क्या होता था कि जंग बदर में दुश्मन हार जाते तो अपना साजो सामान मैदान जंग में छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाता। उसमें छोड़ के जाने वाली चीजें जो थी उसमें ज्यादातर बकरियां ज्यादा होती थी, और बकरी को अरबी में गन्नम कहते हैं। और ये अक्सरियत होने की वजह से जो माल होता था, इसलिए इसका नाम पड़ा माले गनीमत, गन्नम से निकला हुआ वर्ड। अब उसमें घोड़े, ऊंट वगैरह होते, तलवार होती, अशरफी होती, खजूर होते, जैतून का तेल होता, शहद होता, खाने पीने के कपड़े, चीजें सब कुछ होती। अब ये लूट मार करते थे। जंग बदर की पहली जंग में तो रसूल ने जंग ओहद में एक सिस्टम बनाया कि नहीं, मैं खुद सब में बांटूंगा तरीके से। मुसलमान फतह हुई, जो कुछ भी हुआ जंग ओहद में, नुकसान भी हुआ, फतह भी हुई, रसूलुल्लाह ने अपने तौर से इनको बांटा, समझाया तरीके से। फिर जब मुसलमान ने देखा कि जंग के बाद माले गनीमत जो मिलता है उसमें हमें रसूल बांटते हैं, तो वो इतने खुश हो गए तो खुदा ने उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया, और मुसलमानों तुम जान लो कि यकीनन जो कुछ तुमने माली गनीमत से लिया है उसमें बेशक खुम्स खुदा, पैगंबर, पैगंबर के घर वाले, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। 6 तबके के लोगों के इस्तेमाल के लिए तुम पर खुम्स वाजिब किया गया। खुम्स तुमको कितना मिला? इतने मुझे दिरहम मिले, दिनार मिले, इसमें से खुम्स यानी 5वां हिस्सा तुम्हें देना है।
اب وہ 5واں حصہ رسول مال غنیمت میں رکھتے، بیت المال میں رکھتے اور 6 طبقے کے لوگوں میں بانٹتے۔ اب خدا نے تو یہ کہا کہ بے شک اس میں بے شک خمس خدا، پیغمبر کے گھر والے، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے ہے 6۔ اب خدا کا حق تو رسول کے پاس رہتا، رسول کے گھر والے کا حق بھی خدا رسول کے پاس رہتا، اور خود رسول کا حصہ بھی اپنے پاس رہتا۔ یہ 3 کو تو آپ ایک طرف رکھو، اللہ کا پیغمبر اور پیغمبر کے گھر والے، ان کا حصہ ایک طرف۔ اب دوسرا حصہ کیا ہوتا تھا؟ یتیم، مسکین اور مسافر، ان کا ایک حصہ کر دیتے تھے۔ فرض کرو کہ ایک آدمی کو 100 درہم ملے مال غنیمت میں، تو اس کا 5واں حصہ الگ کرتے تھے، یعنی 20 درہم تمہیں دینا ہے۔ خمس کے حیثیت تم پر ٹیکس لگ گیا۔ اب 20 دینار اس شخص نے دیے، 100 دینار فرض کرو اس کو ملا، 5% کے حساب سے 20 دینار اس نے رسول کو خمس کے حیثیت سے دے دیا۔ رسول نے اس کو 2 ٹکڑے میں حصہ کر دیا۔ اللہ کا نبی اور نبی کے گھر والوں کا ایک حصہ، اور دوسرا حصہ کس کو دیتے تھے؟ یتیم، مسکین اور مسافر، یعنی 20 دینار اس نے جو دیے اس کے 2 ٹکڑے کا مطلب کیا کہ ایک جگہ پر 10 دینار آیا، دوسری جگہ پر 10 دینار آیا۔ تو رسول کے پاس جو 10 دینار آئے اس میں اللہ کا نبی اور نبی کے گھر والے یعنی ذی القربہ، قریبی رشتہ دار، یہ 10واں حصہ، بظاہر خمس 5واں حصہ ہے، لیکن یہ 10واں حصہ جو بنا یہ ہے دسون۔ زکوٰۃ تو بعد میں مکی زندگی میں نافذ ہوئی، جب دیکھا کہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، تاجر ہیں، بیپاری ہیں، تو تمہارے مال میں سے 2.5% رسول نے، قرآن نے زکوٰۃ 82 جگہ استعمال کیا، مگر کہیں پر فکس ٹیکس یعنی ریشو نہیں بتایا کہ 2.5 کاٹے کہ 3 کاٹے، صرف حدیث میں اس وقت 2.5% کی ضرورت تھی، 2.5%۔ اب یہ اسلامک ٹیکس ہے، جیسے یہ انکم ٹیکس ہے، پاکستان میں 72 قسم کے ٹیکس لگتے ہیں، اور کبھی انکم ٹیکس زیادہ ہے کبھی کم ہے۔ اب چونکہ ہم لکھی ہوئی چیز سے ہٹتے نہیں، تو رسول نے 2.5% کاٹے تو آج بھی 2.5% کاٹے جاتے ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ پہلی چڑھتی نہیں دی جاتی تھی، یہ ایک آنا ہوتا تھا تو ایک آنے کی برابر، اتنے برابر کا تقریباً جرا بنتا تھا۔ اگر وہی چڑھتی آج دے وے اور جرا بنے آپ کے 25 روپے کا، تو یہ جسٹیفائی تو نہیں کر رہا، تو من مراد پیالے میں رکھ دیتے ہیں۔ تو 2.5% آج اگر کاٹے تو کیسے یہ ملک کی معیشت چلے، یہ اکنومی کیسے چلے؟ اور خاص کر کے غریب و ضرورت مند کو یہ حصہ دیتے تھے زکوٰۃ 2.5%، 2.5% اور خمس بظاہر 5% مگر 10%، یہ دونوں مل کر ہم اس کو گنان میں سار کہتے ہیں، 12.5%۔ 10 اون ورڈ اس لیے عام طور سے استعمال کرتے تھے 10واں حصہ، کہ اناج کا 10واں حصہ، 10 ان یعنی اناج کا 10واں حصہ۔ اور یہ مذہبی ٹیکس ہے، اس کو امام نے فرمایا امتحان ہے، پرکھ ہے، اس میں خوراک میں پاکیزگی آئے گی، ایمان کی سلامتی آئے گی، ذریعہ نجات ہے، نورانی دیدار ہے۔ یہ ایک گن پاؤڈر کی طرح ہے۔ مولانا نے فرمایا مذہب کا لنگر ہے، اینکر ہے۔ مولانا نے فرمایا مذہب کا یہ سیڈ ہے، بیج ہے، اور مذہب کی ایک ٹرنک ہے۔ تو اس طریقے سے سینٹرل ایشیا میں وہاں پر لوگ صاحب حیثیت نہیں تھے اور غریب غربا تھے، تو وہاں پر کھیتی باڑی، اب یہ تو جنگ کے میدان میں جو جنگ کرتے تھے ان کے لیے خمس تھا۔ اب دوسرا طبقہ جو رسول کے زمانے میں تھا جو کھیتی باڑی کرتا تھا، تو ان کو تو خمس نہیں کہا تھا، ان کو تو مال غنیمت نہیں ملتی تھی، تو ان کے اوپر عشر لگایا خدا نے۔ عشر یعنی 10واں حصہ، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ عشر دے وے، جو فوجی ہیں جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں وہ خمس دے وے۔ عشر کا اس طرح ڈائریکٹ 10واں حصہ تھا۔ اب یہ کھیتی باڑی سینٹرل ایشیا کے اسماعیلی بھی کرتے ہیں، اپنے ناردرن علاقے میں لوگ، اس لیے وہاں عشر، دسون
10% है। हम शहर में खेती बाड़ी तो नहीं करते, हम जो कुछ भी करते हैं यानी कमाते हैं, अच्छा खासा साहिब हैसियत है यहाँ के तबका, तो हम ज़कात की रकम और दसों की रकम 10 और 2.5% सारे 12, इसीलिए हम एफिडेविट देते हैं कि हम हमारे यहाँ जमात खाने में दे देते हैं, इसलिए डिडक्शन नहीं कराते हैं, डिक्लेरेशन दे देते हैं। तो ये सारे 12% है। तो ज़कात जो है जिसकी लफ्ज़ी मायना पैदाइश है, और इस तरीके से उशर, खुम्स और दसों। अब यही सवाल पैदा होता है कि इस्माइलिज्म जो है ये कमर्शियलिज्म है, पैसा है तो धर्म है, मजलिस है, गरीबों का कोई हक नहीं, यानी हम लोग गरीब की हमदर्दी के आड़ में हमदर्दी करने के गरज से हम ऐसे अल्फाज यूज करते हैं। फिर जवाब क्या देते हैं हमको, गैर के अंदर तो पैसे के कोई नहीं। मैं आपको बताऊं सिंपल अल्फाज में, जितने गैर के अंदर पैसे का है इतना ज्यादा हमारे इस्माइली धर्म में नहीं। 1,20,000 रुपया हो ना तो आप हज कर सकते हो। गरीब का क्या होगा? क्या हज के सवाब से क्या यहां गरीब महरूम नहीं होता? साहिब हैसियत हो तो ज़कात दे सकता है, जो साहिब हैसियत नहीं तो ज़कात भी नहीं दे सकता है 2.5%, और वो महरूम हो जाता है। 5 से लेकर 15,000 रुपये हो तो मैं कुर्बानी कर सकता हूं, बकरी या गाय खरीद सकता हूं, वरना इसके सवाब से मैं महरूम हो जाता हूं। जवानी अगर है तो मैं जिहाद में हिस्सा ले सकता हूं, अगर बुढ़ापा है या बचपना है तो मैं इस सवाब से महरूम हो सकता हूं, जिहाद में हिस्सा नहीं ले सकता। 1,20,000 1.25 रुपये हो तो हज कर सकते हो, वरना। अब बताइए, कंपेयर करो कि कौन सी ऐसी हमारे यहाँ मजलिस है जो 1.25 लाख लेती है। तो गैर में दिया जाता है, हमारे यहाँ गैर में नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ दिया जाता है। गैर को आप हमारे तरीके से क्यों कंपेयर करते हो? वो ज़ाहरी चीज है, ये बातूनी चीज है। भगत कह रहा है ना कबीर, दे दिया तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, छीन लिया तो रक्त बराबर। कबीर कहे वाणी। दे दिया ने जिसने अपना फर्ज समझकर, मजहब का अंग समझकर, तो कबीर कहता है कि वो दूध के बराबर है। हम नहीं देते तो फिर उसको फरमान करना पड़ता मुर्शिद को। मांग लिया यानी मुर्शिद ने मांगा, तो मांग लिया तो पानी बराबर। फिर भी अगर किसी ने इसके ऊपर अमल नहीं किया तो फिर मुर्शिद छीनता है तो रक्त बराबर यानी खून के बराबर हो जाता है। दूध, पानी और खून का इशारा किया इसने। मांगना, देना, मांगना और छीनना हमारा मतलब बात नहीं है। मौला इसमें हमें गारंटी देते हैं, मौला हमें समझाते हैं, इसमें हमारी रूहानी तरक्की है। माल अगर मौला ने मांगा, हमने दिया। मुझे कोई कहे कि कलयुग ज्ञान में है ना, जेम जेम कड़ीकाण वध से मुनिवरो तेम अली राजो चरित्र कर से अपार।